already given to Talha? दे चुके हैं? No sir. मुझे लगता है यार, अच्छा नहीं, I will try to share. ये करूटो की जो किताब है उसमें 11th चैप्टर है, compressibility and settlement. So this is about the consolidation settlement. It's very well written, comprehensive. So I would suggest, rather recommend कि हर कोई जो है इस चैप्टर को पढ़े अगर आप वाकई कंसोलिडेशन सेटलमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं. तो मैं इससे कुछ एग्जांपल्स आपको इलस्ट्रेट कर दूंगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. The basic idea you have already learned in your BSc undergraduate level even. This is the quotation of the Karl Tarzagi, and you can imagine that how you can say serious the settlement is. That less than 10 years ago, the foundation committee of a well-known engineering society decided at one of its meetings that the word settlement should be avoided in public discussions because it might disturb the peace of mind of those who are to be served by the engineering profession. So just to highlight the importance of the settlement. इस किताब के शुरू में in the few pages some case studies has been discussed. For example, ये एक some examples उसने दी हुई हैं. यहाँ से मेक्सिको सिटी की examples है because it's a very porous stratum underneath with groundwater table. So mainly due to the groundwater pumping, जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो हो रही है. तो इस किस्म की फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी बिल्डिंग है, उसकी एग्जांपल दी है कि दिस बिल्डिंग हैज बीन सेटल्ड इफ यू कैन रीड इट बाय लाइक 3 मीटर्स, और उनको नीचे से सराउंडिंग स्टेयर्स बना के उसकी अप्रोच बनानी पड़ी कि होल बिल्डिंग हैज बीन सेटल्ड बाय 3 मीटर्स. बिग सेटलमेंट. Pisa Tower is another example of the consolidation settlement which is keep on settling for so many centuries. And another example has been quoted here in this bridge where the settlement of more than 1 meter, you can see this is the bridge which is you can say supported on piles. So it is without settlement, and the surrounding ground got the fill material, and it has been settled more than 1 meters, and then keep on, you can say, filling and making this approach to the bridge. So consolidation settlement is also known as the primary consolidation settlement that occurs when a soil is subject to increase in effective stress. ठीक है जी. तो effective stress, keep in mind settlement in the ground always happens when there is an increase in the effective stress, not the total stress. अगर आपकी effective stress same रहती है, total stress बढ़ भी जाए, तो the ground will not settle. It is the phenomena of the 100% saturated soil. So actually what happens when the ground is fully saturated, you put the load over it. We can consider the soil skeleton, the soil particles as incompressible. Water is also incompressible. So if you compress it and the water cannot go out, there will be no settlement. Okay? But when you apply the load, the groundwater table underneath becomes under pressure, and under pressure it starts moving away from the loaded area. As the water is moving away from the loaded area, the ground squeeze and keeps settling. The soil particles come into closer, you can say, packing. So the rate of the settlement depends how quickly the water can move out of the, you can say, the soil mass. That's why this consolidation is a process where the settlement happens or takes place as a result of expulsion of water from the loaded area. This will also happen in case of sand. If sand is saturated and you put over load, water comes under pressure and it will move away.
As in case of sand, it's a free draining material. As during the course of the applying load or stress, the water keep on moving very quickly, and settlement consolidation process completes even during the course of the load application. So generally, this phenomena is typically taken for clay soil, where the soil cannot drain very quickly. It keep on draining for long time. Maybe it takes sometimes months, years, and they say sometimes decades. Okay? So that's why this is more, you can say, pronounced, important in case of. Otherwise, by definition, this also happens in, you can say, sandy soil. This is consolidation settlement, which purely happens due to the migration of the moisture or water from the soil mass. There is another type of the settlement, which is known as the secondary compression settlement, is due to the particle reorientation, creep, and decomposition of organic material, and does not require the expulsion of pore water pressure. Actually, this happens when you have a very high load. For normal load, we assume that the particles are unbreakable or undistorted, but for heavy loads, the particles can get disturbed and they can reorient. पैकिंग डिफरेंट हो सकती है, उनके आगे पीछे हो सकते हैं, उस प्रोसेस में आपकी सेटलमेंट हो सकती है. ड्यू टू क्रीप द पार्टिकल्स कैन गेट क्रश्ड, उसके नतीजे में सेटलमेंट हो सकती है. एंड द पार्टिकल्स कैन बी ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. आपको पता है कि ऑर्गेनिक क्लेस में जो इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं वो तो काफी हार्ड होंगे, बट ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं वो इतने हार्ड नहीं है. व्हेन हैवी लोड कम्स, so they also crush and break, and that portion of the settlement which happens due to the crushing, due to the particle reorientation, due to the creep action, that is known as the secondary consolidation. So all three जो है वो consolidation settlement की ही types हैं. One is the primary consolidation, other is the secondary consolidation, and third one is the distortion consolidation or settlement that result from the lateral movement of the soil in response to change in effective stress. These movements occur when the load is confined to a small area, such as structural foundation, or near the edges of large loaded areas such as embankment. तो ये sometimes हम इसको इग्नोर कर देते हैं जनरल कैलकुलेशन में, बट बाय डेफिनेशन क्या चीज है कि जब आप एक लोड एरिया के ऊपर वर्टिकल लोड लगाते हैं तो कुछ लैटरल मूवमेंट भी ग्राउंड की होगी. ठीक है जी, उसकी वजह से जो वर्टिकल डेफॉर्मेशन होगी, दैट इज नोन एज डेफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन सेटलमेंट. बट नॉर्मल कैलकुलेशन में ये पोर्शन जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं. इसी तरह से सेकेंडरी कंसोलिडेशन फॉर नॉर्मल लोडिंग लाइट स्ट्रक्चर्स, समटाइम्स दिस फ्रैक्शन मे बी वेरी स्मॉल. सो मेन जो कंसोलिडेशन की कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम द प्राइमरी कंसोलिडेशन, एंड व्हिच इज mainly due to the migration of the water or the dissipation of pore water pressure. तो ये तो उसकी these are the three type of the consolidation settlement, और उनका जो sum है so that will be the total consolidation settlement. Change in vertical stress, जैसे मैंने कहा कि settlement जो है वो consolidation settlement की जब हम बात करते हैं तो that will happen when there is increase in effective stress at any level below the foundation, below the ground surface rather you can say. अब वो effective stress किस वजह से increase हो सकती है? There could be 3-4 reasons. Number one is stress changes due to placement of fill. For example, at one side there could be a filling of, let's say, many meters, 4-5 meters. Sometimes you say you have a low-lying area and you have to fill it. ठीक है जी? When a fill is placed on the ground, sigma z prime, which is the effective stress in the underlying soil, increases due to the weight of the fill. If the length and width of the fills are large compared to the depth of the point at which we wish to compute the stresses, and the point is beneath the central area of the fill, then we can compute sigma zf, that is the increase in the effective stress
by simply adding another layer to the summation of gamma h of equation. ठीक है जी. Actually क्या चीज है? For example, you have a ground surface, existing ground surface at a depth of say 10 meters. Below that ground surface, vertical stress इसी एक soil element के ऊपर कितनी होगी? That will be the overburden pressure up to that depth. For example, 10 meters है तो gamma into 10, and gamma is the unit weight of the soil above that point. ठीक है जी. तो ये overburden pressure, ये initial stress है आपकी. Now, for example, if you are adding a 5 meter thick fill on that ground, अब कितनी स्ट्रेस इंक्रीज होगी वो ये बात इसमें कह रहा है कि अगर आपकी फिल जो है वो इन्फिनिट है टू ऑल डायरेक्शन, कि उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो आपके जो लोडेड एरिया है जिसके ऊपर आपने स्ट्रेस मालूम करनी है, इफ इट इज कंसिडरेबली लार्ज इन बोथ डायरेक्शन, जिसको मैं इन्फिनिट एक्सटेंड कह रहा हूँ, तो उस सूरत में आपकी जो स्ट्रेस नीचे ट्रांसफर होगी वो कांस्टेंट होगी बाय द अमाउंट ऑफ द ओवरबर्डन प्रेशर बाय दिस फिल. फिल 5 मीटर का है, उसका यूनिट वेट हमारे पास होगा, तो उसका जो उसके अपने बॉटम के ऊपर जो प्रेशर आएगा टॉप ग्राउंड सरफेस के ऊपर 5 मीटर इनटू गैमा, ये उसका ओवरबर्डन प्रेशर होगा एट द बॉटम ऑफ द फिल. तो वो जो चीज है, जैसे आपने ओवरबर्डन प्रेशर मालूम करते हैं किसी भी लेवल पे, आपको पता है कि ऊपर वाली लेयर का कॉन्स्टेंटली वो नीचे जा रहा है. तो इसी तरह वेरी सिंपल, फिल अगर कंसिडरेबल एक्सटेंट तक बढ़ रहा है या इन्फिनिट एक्सटेंट है उसकी, तो उस सूरत में सिंपली गैमा इनटू एच ऑफ द फिल जो है वो नीचे उस पॉइंट पे ऐड हो जाएगा और वो इंक्रीज होगी इन द इफेक्टिव स्ट्रेस. So this is how you can see from here sigma z f final effective stress at any depth is equal to sigma z 0. ये overburden pressure है without fill. जैसे मैंने बताया कि जो एक्चुअल ग्राउंड है उस पॉइंट तक जो overburden pressure है उसका, that is the sigma z 0 prime in this you can say formation plus gamma of fill h of fill. तो जितनी fill की थिकनेस है उसका जो गैमा है उसको मल्टीप्लाई करके उसमें जमा कर देंगे. दिस इंक्रीज विल बी द सेम एट 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर, जैसे भी आप नीचे जाएंगे ये इंक्रीज सेम रहेगी इस सूरत में. ये इट इज कॉन्ट्रेरी टू द लिमिटेड लोडिंग एरिया. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फुटिंग है 3x3 मीटर्स की या 1x1 मीटर की, तो हम आपको पता है कि जो उसका कॉन्टेक्ट प्रेशर है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वो कम होता जाता है. ऐसे ही है ना, that going to decrease. But in case of fill, if it is extending to a larger extent in both direction, तो वो constantly हर पॉइंट के ऊपर उतना जमा हो जाएगा. बट दिस इज ओनली फॉर दिस केस. अगर आपके पास एक ऊपर एम्बैंकमेंट है जो कि लिमिटेड उसकी एक्सटेंट है, तो उस सूरत में उसका जो प्रेशर है वो डिफरेंट होगा. आई होप कि आपने स्ट्रेस की कैलकुलेशन में अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर उस तरह के प्रॉब्लम किए हुए हैं. But anyway, if the large area is getting fill material, तो उसकी जो increase है वो constant होगा किसी भी depth के ऊपर नीचे. तो ये this is due to fill. Stress change due to placement of an external load. ये वो बात है जो मैं अभी कह रहा था कि in case of your foundations which are of limited you can say extent or size, तो उस सूरत में किसी भी ग्राउंड के किसी भी डेप्थ के ऊपर जो स्ट्रेस की इंक्रीज होगी वो दैट विल बी द ओवरबर्डन प्रेशर जो इनिशियली वहां पे था, प्लस सिग्मा जी इंड्यूस्ड. आप इसको डेल्टा सिग्मा कह सकते हैं कि अगर आपका फुटिंग के बेस के ऊपर जो बेरिंग प्रेशर है वो क्यू है, तो नीचे आपको पता है कि वो आई इंटू क्यू होता है, और आई इज द स्ट्रेस इन्फ्लुएंस फैक्टर जो कि 1 से कम होगा. वो 0.5 हो सकता है, 0.3 हो सकता है. तो वो उसको मालूम करने के तरीके जो है वो आप पढ़ चुके हैं. वेस्टरगार्ड मेथड है, बॉजिनस मेथड है, अप्रोक्सीमेट 2:1 मेथड अगर आपको याद हो, तो हम इन मेथड से ये वाला कर सकते हैं. तो ये वो केस है जो आपकी फुटिंग का केस है कि अगर आपने एक फुटिंग प्लेस की है तो नीचे एक क्ले की लेयर है या कोई दूसरी लेयर है, उसमें कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितनी होगी, तो वो हमें इनिशियल स्ट्रेस और फाइनल स्ट्रेस ये दोनों स्ट्रेसेस का पता होगा, तो तब हम सेटलमेंट मालूम कर लेंगे. ओवरबर्डन स्ट्रेस पहले से मौजूद है. जितनी स्ट्रेस आप इंक्रीज करेंगे किसी लेवल के ऊपर, द सेटलमेंट
will be proportion to this amount of increase in the stress. The total final stress, initial stress plus the change in the stress, ये तो आपकी दूसरा केस हो गया जो कि हमारी फुटिंग का है। पहला हमने फिलिंग की बात की। तीसरा केस जो स्ट्रेस इंक्रीज करता है, दैट इज द चेंज ड्यू टू चेंज इन द ग्राउंड वाटर टेबल एलिवेशन। ये तीनों एग्जांपल्स इस बुक में दी हुई हैं। तो दीज आर द थ्री सिनेरियो, मेन सिनेरियो जो सेटलमेंट काज करते हैं। आप फिल प्लेस करें किसी एरिया के ऊपर, कंसोलिडेशन सेटलमेंट हो जाएगी। आप फुटिंग प्लेस करते हैं नीचे, कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगी। आप ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसका एलिवेशन चेंज हो जाए तो सेटलमेंट होगी। ठीक है जी। तो चेंज इन स्ट्रेस, इंक्रीज इन स्ट्रेस उस वक्त होगी व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोवरिंग। For example, if the groundwater table is at a depth of 5 meters initially, and then you are dewatering or you are pumping continuously, and groundwater table is sinking down, let's say from 5 meters so it goes to 10 meters, it will cause the stress, effective stress increase on the lower layer of the grounds. तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपका नीचे जो जहां पे ग्राउंड वाटर टेबल एक्विफर है, इफ इट इज ए पोरस, जैसे कैलिफोर्निया की उसने एग्जांपल्स इनिशियल पेजेस के ऊपर दी हुई हैं कि वहां पे जो एक्विफर है वो नीचे वो बहुत ही पोरस है। एज यू आर पंपिंग द वाटर एक्सेसिवली फ्रॉम दैट एक्विफर, तो स्ट्रेस बढ़ रही है उसके ऊपर, नीचे जो स्ट्रेटम है तो वो सेटल हो रहा है। क्योंकि वो पोरस है, आप पानी निकाल रहे हैं तो पार्टिकल्स जो है वो सेटल हो रहे हैं और ग्राउंड जो है वो ऊपर से खुद ही सेटल हो रहा है। तो अपेरेंटली टू ए लेमैन इट सीम्स टू बी वेरी, यू कैन से मैजिक कि जी ये कैसे ग्राउंड सब्सिडाइज हो रहा है। तो उसने एग्जांपल अगर आप देखेंगे पीछे 3 मीटर 5 मीटर तक सेटलमेंट हुई है ड्यू टू पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल और पंपिंग ऑफ ऑयल इन सम केसेस। तो इस केस में किस तरह से स्ट्रेस इंक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप इस एग्जांपल की बेस पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस shaded area, this line is the original ground elevation, ये elevation 110.6 लिखा हुआ है। ground water table is at elevation of 9, तो 1.5 मीटर ग्राउंड से नीचे ये ग्राउंड वाटर टेबल है। ये एक पॉइंट उसने मार्क किया है ए, फॉर एग्जांपल। अब इसमें हम देखना चाह रहे हैं कि ड्यू टू फिल कितनी स्ट्रेस इंक्रीज हुई है, और अगर ग्राउंड वाटर टेबल नीचे आ जाता तो वो कितनी होगी। पहले अगर मैं फिलिंग की बात करूं तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट विल बी द इनिशियल स्ट्रेस एट पॉइंट ए व्हेन देयर इज नो फिल। ग्राउंड वाटर टेबल अपनी जगह पे है, फिल अभी हमने वहां रखा नहीं है, डाला नहीं है। ए पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस जो है वो कितनी होगी। सिग्मा जी जीरो जिसको वो कह रहा है, इस इक्वेशन नोटेशन आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। तो दिस विल बी दी ओवरबर्डन प्रेशर एट ए ऑफ द 6 मीटर थिकनेस ऑफ द ग्राउंड। लेकिन ये 6 मीटर जो है इसकी भी दो लेयर्स हैं। दिस लेयर 10.6 टू 9 मीटर एलिवेशन जो कि 1.6 मीटर बनता है, ये आपका ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर है। द यूनिट वेट इज 98 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, और 6 माइनस 1.6 जो कि 4.4 बन जाएगा। दैट द gamma saturated is 100 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। ठीक है जी। तो कैलकुलेट करके को बता सकते हैं सर? ये 597 आएगा। ये लिखा हुआ है, अगर आपकी स्क्रीन पे आ गया हुआ है तो, अगर ये वही पॉइंट है तो ना देखिए 98 इंटू 1.6 ये पहली लेयर का, 100 इंटू 4.4 ये गैमा सैचुरेटेड उसने यूज कर लिया है। इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहे हैं -62.4, 4.4 ये वाटर का माइनस करेंगे तो ये 322 आ गई है स्ट्रेस, जो कि इनिशियल स्ट्रेस है, जो ए पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस होगी ये वाली यहाँ पे 322। इज दिस ओके? यस सर, यस सर। अब आपने 5 मीटर का फिल प्लेस कर दिया तो वो कह रहा है कि फाइनल स्ट्रेस क्या होगी।
इस पॉइंट के ऊपर कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये भी आपके सामने, अब मेरे पास ज़्यादा चारा नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं। 322 तो ये हो गई, और फिल का गैमा 122 दिया हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका होगा 932। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रेस। ये मैं बात कर रहा था कि ये जो वैल्यू है 122 इंटू 5 आपने प्लस किया है, वो ए के लिए भी उतना ही प्लस होगा, अगर बी पॉइंट में मैं नीचे चले जाऊं तब भी इतना ही प्लस होगा। चेंज बी के ऊपर ओवरबर्डन वाले पार्ट में आएगी। जो स्ट्रेस की इंक्रीज है ड्यू टू फिल मटेरियल, वो कांस्टेंट ही नीचे ऐड होती जाएगी हर पॉइंट के ऊपर। ठीक है जी। लेट्स से अगली बात हम देखते हैं, ए पॉइंट के ऊपर, ये तो फिल से बात होगी, अभी फिल नहीं है। लेट्स सपोज वी वांट टू फाइंड द इनिशियल स्ट्रेस एट पॉइंट ओ ए विदाउट एनी फिल और ग्राउंड वाटर टेबल मूवमेंट, जो कि हमने 3.322 कैलकुलेट कर ली हुई है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। लेट्स से आई से द ग्राउंड वाटर टेबल कम्स एट पॉइंट ए। ग्राउंड वाटर टेबल आपने पंप किया नीचे और वो ए पॉइंट पे आ गया नीचे खाल करके। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द स्ट्रेस, फाइनल स्ट्रेस एट पॉइंट ए, चेंज होगी या नहीं होगी? पहले तो ये तय कर लें कि अगर वाटर टेबल जो है वो यहां से मूव करके ए वाली लाइन पे आ जाए, तो वेदर देयर विल बी एनी चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए। यस सर, चेंज होगी। चेंज होगी, ठीक है जी। कितनी होगी वो जरा कैलकुलेट करके मुझे बताएं। वेरी सिंपल है, वाटर टेबल नीचे आ गया, ग्राउंड इज सैचुरेटेड, एंड वी कैन अज्यूम दैट the unit weight of the ground above point A, now it is 98 pounds per cubic feet, ये लिखा हुआ है। ग्राउंड वाटर टेबल अगर नीचे आ गया है तो इसका यूनिट वेट हम 98 ले लेते हैं, लेट्स से, या जो भी हो आपके पास। तो अब ए के ऊपर कितनी स्ट्रेस होगी ड्यू टू ओवरबर्डन? फिर वो जो इनिशियल स्ट्रेस होगी वो आप पूछ रहे हैं ना अभी, जो मतलब कि वर्टिकल होगी ग्राउंड वाटर टेबल, इफ देयर वाज नो चेंज इन द ग्राउंड वाटर टेबल, दैट 322 तो हम कैलकुलेट कर ली हुई है, वो इनिशियल तो हमने साइड पे लिख ली है। नाउ द वाटर टेबल हैज कम एट पॉइंट ए, मूव करके नीचे आ गया ए के ऊपर। अब हम देखना चाह रहे हैं कि व्हाट चेंज हैपेंड इन द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट ए। अब कितनी होगी इफेक्टिव स्ट्रेस ए के ऊपर? सर ओवरबर्डन की वजह से 1198 हो जाएगा टोटल हमारे पास पाउंड्स पर क्यूबिक फीट। 98 इंटू 6 यार, सिंपली बात है। तो ये सारी लेयर 6 मीटर की 98 क्यूबिक फीट पर क्यूबिक मीटर पे होगी। 98 इंटू 6 कर लें, 588। ठीक है जी। तो अब ए पॉइंट के ऊपर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 588 है। इनिशियली कितनी थी जब ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे था? 322। स्ट्रेस हैज बीन इंक्रीज्ड। जब ये स्ट्रेस यहाँ पे ए के ऊपर इंक्रीज होगी तो ये सारी जो ग्राउंड है वो नीचे सेटल कर जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ गई ना ए पॉइंट के ऊपर। इसी तरह जो पॉइंट्स ए से नीचे हैं उनके ऊपर भी बढ़ गई है, ठीक है। जो हर पॉइंट के ऊपर इफेक्टिव स्ट्रेस हैज इंक्रीज्ड, तो ग्राउंड जो है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, एंड यू विल सी द सबसिडेंस आर द सेटलमेंट एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है जी। वो डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आप वाटर टेबल नीचे मूव करता जाएगा आपका ग्राउंड सेटल होता जाएगा, ठीक है जी। ओके, ये इफेक्टिव स्ट्रेस का इंक्रीज है व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोअर, बट इफ द ग्राउंड वाटर टेबल स्टार्ट राइजिंग अप टू द ग्राउंड सरफेस आ जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर ए पॉइंट के ऊपर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है बढ़ेगी या कम होगी? इफ द ग्राउंड वाटर टेबल कम्स एट, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? जितना वाटर टेबल ऊपर राइज करेगा, दैट डिस्टेंस इनटू यूनिट वेट ऑफ द वाटर, जितना यूनिट वेट ऑफ वाटर का प्रेशर है वो माइनस में चला जाएगा, और वो इसमें से कम हुई 322 से 9.8 इंटू 1.6 वो माइनस हो जाएगा। तो इट मीन्स ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आने से आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होगी। It means there will be no harm or there will be no settlement due to this aspect.
वो एक अलग एस्पेक्ट है कि जब आपका ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आएगा तो आपकी जो ग्राउंड की बेरिंग कैपेसिटी है ड्यू टू सैचुरेशन दैट में रिड्यूस, उस सूरत में आपका जो है वो सेटलमेंट हो सकती है। बट ड्यू टू दिस एस्पेक्ट कि अगर एवरीथिंग रिमेन सेम, वाटर टेबल ऊपर आने से आपकी स्ट्रेस जो है इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगी, तो सेटलमेंट इट मींस it's dangerous when the water table is moving downward, which is the natural process कि आपकी पंपिंग से, कॉन्टिन्यूस पंपिंग से आपका वाटर टेबल नीचे मूव करता जा रहा है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मोस्टली द ग्राउंड में subsidize subside in case if the ground जो एक्विफर है, वाटर बेरिंग स्ट्रेटम है, वो पहले से पोरस स्ट्रेटा है। अगर वो बिल्कुल फाइन ग्रेन है, पहले से कंपैक्टेड है, तो शायद वो जो सेटलमेंट है इतनी ज्यादा ना हो कि हम देख सकें, लेकिन अगर वो पोरस है तो उस सूरत में दिस एस्पेक्ट विल बी ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर अगर वाटर टेबल कांस्टेंट रहती है और अगर कंडीशंस जो हैं वो सेम रहती हैं, तो उसमें हमारी जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट फैक्टर है वो जीरो रहेगा। सॉरी आपकी आवाज बीच में कहीं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा ग्राउंड की कंडीशन सेम रहती हैं, कंसोलिडेशन जो वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल सर उसकी कंडीशन चेंज नहीं होती, तो फिर हमारी जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो जीरो होगी। जी जी बिल्कुल। अगर आपकी एडिशनल स्ट्रेस भी नहीं है ऊपर से ग्राउंड पे और वाटर टेबल भी मूव नहीं कर रहा, तो देयर इज नो चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, तो सेटलमेंट उस वक्त होगी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस में इंक्रीज नहीं हो रही तो सेटलमेंट नहीं होगी। ये तो राइट। you can see this one, this illustration indicates this is the soil element at this sigma z0. This is the overburden pressure from the top of the overlying soil. The same will be the reaction here, because if this stress is increased by this delta sigma z prime, this is the increase in effective stress. When there is an increase in effective stress, this ground will settle. Actually particle will remain same, they come in closer packing. ठीक है जी। तो this settlement जितना ये decrease हुआ है delta C, this is the consolidation settlement. So this happens due to this part of the effective stress, delta sigma Z. तो यही हम बात कर रहे हैं कि ये delta sigma Z can come from three sources, mainly by placing fill over the area, by your foundation bearing pressure, or by lowering the ground water table. Actually, you can see from here the phase diagram. In the soil mass, you have the solids, you have the voids. So solids आप consolidate कर दें तो this is not going to change by primary consolidation. हम ये समझ रहे हैं कि ये part जो है वो incompressible है, ये part जो है वो पानी से भरा हुआ है। अगर ये बिल्कुल confine हो तो ना ये compress हो सकता है ना ये compress हो सकता है, तो settlement cannot happen. Actually, when there is a pore water pressure, water moves laterally, vertically, downward or upward or laterally even. In that case, this void's mass decreases and comes closer. So this is the phenomena of the consolidation settlement. Kindly go through these pages. Very important things यहाँ पे elaborate की गई हैं. Important thing is your concept about the consolidation settlement. It's not important that you can solve one problem. That's not very important, particularly those who are interested in understanding this consolidation, particularly the technical engineering students. So this model indicates कि किस तरह से consolidation settlement जो है वो उसका concept क्या है. I want to go a bit ahead. The consolidation test. Actually, in order to get a consolidation settlement,
we need the consolidation parameters. Because so what we do is that the soil layer for which we want to get the consolidation settlement. So during the soil exploration, we must get the undisturbed soil samples from those layers. As this consolidation settlement concept is more important towards the cohesive soils, clay soils, so it's very easy that during the investigation process, we can take the undisturbed soil sample from the cohesive soil layer during geotechnical investigation. So that's why by using shell by tube, wherever the cohesive soil is encountered, you take the undisturbed soil sample and you bring it to the laboratory and perform the consolidation test. So during consolidation test, what we do is we determine the compression coefficient that with which rate the ground will settle. Because it's a fine grained soil and a small sample behavior, we can consider the representative of the whole ground. तो एक्चुअली आप समझें कि आपने उस ग्राउंड का एक पार्ट जो है वो कंसोलिडोमीटर में प्लेस कर दिया है, you have saturated it and you are loading it from the top and you are recording its deformation in the vertical direction, that is the settlement. जिस रेट्स के साथ उस सैंपल में सेटलमेंट हो रही है वहां से हम कोफिशिएंट मालूम करके एक्चुअल ग्राउंड को भी उसी रेट से एस्टिमेट कर लेंगे. दिस इज हाउ वी अप्रोच टू calculate the consolidation settlement. So from the consolidation test, we determine two type of parameter. One are the parameters which relates with the compression of the ground, what we call as the compression index, the coefficient of volume change, pre-consolidation pressure, and other is the rate of the consolidation. ये भी important है कि जो हम कह रहे हैं कि total settlement इतनी होगी, जो अभी हम consolidation settlement की amount निकालेंगे, that will be the total settlement. But I am not sure that this total settlement will take place in 1 century, in 2 century, in 3 century, in 4 century. It means this is very relevant to me कि मुझे ये पता करना है कि जो आपकी स्ट्रक्चर है, जो उसकी डिजाइन लाइफ है, उसके अंदर उसमें कितनी सेटलमेंट होगी. मुझे टोटल सेटलमेंट हो सकता है वो 500 सालों में हो और आपकी स्ट्रक्चर ने फंक्शन करना है लेट्स से 50 इयर्स के लिए या 100 इयर्स के लिए. तो मेरा कंसर्न तो वो होगा ना कि 100 इयर्स में या ड्यूरिंग द डिजाइन लाइफ ऑफ योर फैसिलिटी हाउ मच सेटलमेंट विल टेक प्लेस. तो वो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन अनदर पैरामीटर व्हिच विल टेल अस द टाइम फॉर कंसोलिडेशन. तो एक तो हमें टोटल अमाउंट चाहिए कंसोलिडेशन सेटलमेंट की और दूसरा हमें टाइम चाहिए कि कितने सेटलमेंट में होगा. तो ये पैरामीटर्स जो हैं वो कंसोलिडेशन टेस्ट से मालूम किए जाते हैं. एंड आई होप इन द अदर पार्ट यू मस्ट हैव कंसिडर्ड दिस कंसोलिडेशन टेस्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. पैरामीटर्स की बात मैं अगर करूं तो इधर आ जाते हैं. ये कर्व बड़ी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस वन. फॉर एग्जांपल we bring one sample and we put into a consolidometer and we apply a small load here, first increment, let's say 10 kilopascal on the sample, and it stay here. This is the stain, or it can be a void ratio. some अगर किसी ग्राफ में मैं देख सकूं, जनरली हम जो डाटा है उसको वॉइड रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं. एक ही बात है, लेट्स से चले जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ा एलैबोरेट कर दूं कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है. सैंपल इज अनडिस्टर्ब हियर एंड यू हैव अप्लाइड अ स्मॉल लोड, सीटिंग लोड you can say at point A. Then from this point you start compressing the sample. I hope all of you have observed the conduction of this consolidation test, that you apply the load in increments, and for initially sample is saturated and you apply one increment load, let's say 1 pounds per cubic feet, pounds per square feet, and you wait for such time when the deformation is happening. तो आप उस लोड को मेंटेन करेंगे till such time when the whole compression or consolidation settlement has been completed. So normally we give a 24 hours for one increment. एक दिन के लिए हम लोड को सस्टेन रखते हैं और ड्यूरिंग दैट टाइम हम डायल गेज रीडिंग्स पढ़ते रहते हैं.
और हम देखते हैं कि एक लेवल पे डायल गेज रीडिंग बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, बढ़ नहीं रही, तो दैट इंडिकेट्स कि आपकी जो कंसोलिडेशन है दैट हैज बीन कंप्लीटेड. फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर increasing the load in increments, this vertical strain या axial strain is decreasing. ठीक है, जो it's happening, अब sample का जो thickness है वो decrease हो रही होगी, तो आपकी ये axial strain जो है वो बढ़ रही है. ठीक है, बढ़ रही है, आपका sample यहाँ तक आ गया. ठीक है, अब इसमें देखें, अगर आप if you are keep on increasing the pressure, you can see a major change in the slope of this line. Initially, when you increase the pressure, the slope is mild. Beyond point B, the slope becomes more. ठीक है जी, कर्व आपकी steep हो गई. This is very important. You can say to understand the consolidation concept and to develop the equation for settlement calculation. अगर आप देखें from A to B, वो कह रहा है it is a recompression. And from B to A it's written a virgin compression or virgin curve or normal curve भी इसको कह देते हैं. And then from C to D, this is rebound curve where we are removing the pressure and the strain is recovering back. ठीक है जी, तो ये पाथ है पूरा. ठीक है जी, अब इस कर्व में what is this recompression? Can anybody tell me कि what is meant by this recompression? अगर नहीं पता तो कोई यही कह दे कि जी आई डोंट नो, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप सारे छोड़ के चले गए हैं. आई एम द अलोन स्पीकिंग हियर. नो सर, इधर ही है सर. यू सी, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं थोड़ा आगे चले जाऊं तो उसका ये कंसेप्ट है. आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि काइंडली इसको जो है वो पढ़ें. लेट्स सपोज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये जो फिगर है ये ग्राउंड सरफेस है. यहाँ पे ये पॉइंट ए लिखा हुआ है जो कि पता नहीं विजिबल है कि नहीं, यहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है. अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस मालूम देखूं जो सरफेस के ऊपर है, तो हाउ मच इज द स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट ए, वर्टिकल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, ओवरबर्डन. जो पॉइंट ए है, इफ इट इज ऑन द ग्राउंड सरफेस, हाउ मच विल बी द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट ए, वर्टिकल इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन पॉइंट ए? सर इट इज 0. ओके, ये आप प्लॉट देखें डेवलप कैसे कर रहा है. लॉग सिग्मा जी, ये लॉग ऑफ प्रेशर है, ये वॉइड रेशियो है. इस पॉइंट की बात हो रही ए की, आप कह रही 0 है, तो ये प्रेशर 0 है और वॉइड रेशियो ऑब्वियसली इस सॉइल मास की कुछ होगी तो वो यहाँ पे है, तो प्रेशर 0 है. ये नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है. व्हाट हैपन देन ड्यू टू द डेपोजिशन, द ग्राउंड वाटर टेबल हैज कम टू दिस पॉइंट. ठीक है जी, अब now this much is the overburden on this point A. So what will be the now effective stress, vertical effective stress on point A? That is the overburden equal to this much soil. Is it? Yes sir. ठीक है जी, तो pressure is increased at A and you can see from curve from A to 2 move करके नीचे आ गई. Pressure increase जैसे आप ऊपर किया है, तो the lower ground will compress. So void ratio will be decreasing. So you move to point 2 from A to 2, ये वाली. तीसरी सिचुएशन ये है कि when now अब आप वहां पहुंच गए हैं, you have to construct something on this ground level and then you start boring and उसी A पॉइंट से आपने एक सैंपल रिकवर कर लिया है by using shell by tube. ठीक होगी बात, और वो सैंपल आपने लेबोरेटरी में लेके आ गए हैं. ठीक है जी, तो अब वो सैंपल जो है वो जब बाहर आ गया तो हाउ मच इज द स्ट्रेस ऑन दैट सैंपल? 0. Yes sir, 0. वो होगी ना ऑलमोस्ट. ठीक है जी, एंड देन दिस सैंपल इज यू पुट ऑन दिस ओडोमीटर एंड वहां पे आपने थोड़ा सा उसके ऊपर हमने सीटिंग प्रेशर लगा दिया है, तो दैट इज द पॉइंट 3. 2 से पॉइंट मूव करके 3 पे चला गया. वॉइड रेशियो सारी की सारी रिकवर नहीं होगी व्हेन यू विल रिमूव दिस प्रेशर. वो कंप्रेस हो चुका है, कुछ पार्शली रिकवर होगी वॉइड रेशियो और पार्शली वहां पे रहेगी, ज्यादा रहेगी कम पार्शली होगी. तो आपका प्रेशर ऑलमोस्ट 0 हो गया. सीटिंग प्रेशर थोड़ा सा लगाया, तो दिस इज पॉइंट 3 जो आप देख रहे हैं, 3 पॉइंट. तो आपका जो सैंपल जब आपने इनिशियली ओडोमीटर पे लगाया तो 3 पॉइंट के ऊपर है.
नो व्हेन यू स्टार्ट प्रेसिंग, अब आपने इंक्रीमेंट्स लगाने शुरू कर दिए, ठीक है जी। अब आपके ये जो डॉटेड कर्व है वो नीचे मूव कर रही है, कंप्रेस होते होते वो 2 पॉइंट के ऊपर पहुंच गई। तो मैं कह सकता हूं कि ये फ्रॉम 3 to 2 जो पार्ट है इन दी ओडोमीटर, दिस इज रीकम्प्रेशन। Yes, sir. Yes, sir. इट्स सैंपल इज नाउ बीइंग रीकम्प्रेस। पहले भी वो कंप्रेस हुआ था, आपने उसकी स्ट्रेस रिलीज कर दी, कुछ सैंपल जो है वो रिकवर हो गई, उसकी स्ट्रेन कुछ बाकी रही, लेकिन आपने दोबारा से उसको रीकम्प्रेस करना शुरू कर दी, ठीक है जी। तो दिस इज द रीकम्प्रेशन पार्ट। अब आपको पता है कि क्योंकि पहले से सैंपल वो प्रेस हुआ था, कुछ रिकवर हुआ है, उसकी जो रीकम्प्रेशन की रेशो है वो कम होगी। दैट्स व्हाई 3 से लेकर 2 तक जो आपकी कर्व है उसका जो स्लोप है वो माइल्ड होगा एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट। अब आप उस पॉइंट पे आ गए हैं 2 के ऊपर जहां पे आपकी ओरिजिनल ग्राउंड कंडीशन थी। नाउ व्हेन यू विल increase the pressure beyond 2.2 and you move to 0.5 here, ये जो 2 to 5 पॉइंट है ये अब आपकी वर्जिन सॉइल है, नॉर्मल सॉइल है, ठीक है जी। तो दिस इज द नॉर्मल कंप्रेशन। तो ये 3 to 2 इट्स नोन एज अ रीकम्प्रेशन एंड फ्रॉम 2 to 5 इट्स virgin compression or normal compression. And if you remove the load from 5 to back to 0 almost, so you move to 0.6 which is almost 0, and again some part will be recovered of void ratio and some will be there. तो actually मैं वापस उस लाइन पे जा रहा हूं, A to B is a recompression curve. In this case the sample is being recompressed. It means that this is the part where the soil has experienced this much pressure and it has been removed and you are again applying this pressure, and during this course some compression will take place, जो recover हुई थी वो वापस आनी है, तो ये recompression curve है। उसके बाद normal compression शुरू हो गई है और this part is known as the normal compression और ये rebound है। अब यही पाथ आपने ट्रेस करना है ग्राउंड में। अब ये पॉइंट बी जो है करस्पॉन्डिंग टू बी, मैं अगर वर्टिकल लाइन लगा दूं यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 किलो पास्कल की वैल्यू आ रही है, ये जो प्रेशर है करस्पॉन्डिंग टू बी पॉइंट वेयर देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द रीकम्प्रेशन टू नॉर्मल कंप्रेशन, दिस प्रेशर इज नोन एज प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। प्लीज कीप इन माइंड और अपने पास पेंसिल में लिखते जाएं, इसको हमने यूज करना है आगे। व्हाट इज दिस प्रेशर नोन एज pre-consolidation pressure? Yes, sir. So if I ask in the quiz or in the paper define pre-consolidation pressure, तो वैसे क्या लिखेगा? Sir, the transition from recompression to मतलब virgin curve. No. This is just for looking at this curve, but this is not the definition. This is pre-consolidation pressure is the pressure which had been applied to the soil in the past. In other words, you can say this is the pressure which the soil has experienced in its past history. कि इस जब आपका वास्ता उससे पढ़ने लगा है, उस सैंपल से, उस सॉइल से, उससे पीछे उसकी जो हिस्ट्री है, उस पे कितना प्रेशर लग चुका है पहले से, वो एक्सपीरियंस कर चुका है, दैट इज द प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। ओके सर। और ये किस वजह से है? व्हाट इज द कॉज ऑफ प्री कंसोलिडेशन प्रेशर? अभी मैंने एक तो बता दी। सर ये ऑफ द सैंपल है। एक वजह ये हो सकती है कि उस डेप्थ से आपने सैंपल रिमूव किया है, तो आपके पास कोई चारा नहीं है सैंपल रिकवर करने के लिए अनलेस यू रिमूव दैट प्रेशर। तो वो आपने प्रेशर रिमूव किया, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड जहां पे मौजूद है वहां तो सॉइल उधर की उधर ही पड़ी हुई है। इट मींस कि वो तो एक ये टेम्परेरी चीज थी, ठीक है ना। वो हम कैसे पता चल सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस फिगर में चले जाऊं, लेट्स सपोज ये सैंपल वही है जो मैं पीछे दिखाया, जिसका प्री कंसोलिडेशन प्रेशर 100 किलो पास्कल आ गया, उस फिगर से आ गया, इस कर्व से आ गया।
ये Yes. पॉइंट जहाँ पे ए है, इसका डाटा मेरे पास मौजूद है फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन प्रोसेस दैट दिस सैंपल डेप्थ इज 100 meters or 100 feet and the unit weight of this ground is this one. So can I find that how much is the stress, overburden stress at point A? मालूम कर सकता हूँ ना मैं? Yes, So this sir. is the sigma z Yes. 0. तो ये लिखें आप, दिस इज द ओवरबर्डन प्रेशर एट पॉइंट ए सिग्मा जी 0 प्राइम. ये ओवरबर्डन प्रेशर है एट द सैंपल डेप्थ, इज इट? दिस इज द ओवरबर्डन प्रेशर एट द सैंपल डेप्थ. अब यही सैंपल मैंने दोबारा वहां पे कंसोलिडोमीटर में लगा दिया व्हेन आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द प्रेशर, और आपने ये कंसोलिडेशन टेस्ट कर लिया और वो जहां से कर्व का पैटर्न चेंज हो रहा है, इफ आई कैन आइडेंटिफाई दिस पॉइंट बी और उसके अगेंस्ट मैं वो पॉइंट मालूम करूं, प्रेशर मालूम करूं, तो वो प्रेशर कितना होना चाहिए? अगर यही रीजन है रिकम्प्रेशन की, उतना ही होना चाहिए. कि अगर ये रिमूवल की वजह से ही वजह है, तो मैंने रिमूवल की, प्रेशर रिमूव हो गया, मैंने इन द टेस्ट आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो जहां पे वो ट्रेंड चेंज हुआ, जहां पे पॉइंट बी है, तो वो जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर हम जिसको कह रहे हैं, उसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए आसपास. Yes, sir. Yes, sir. If this is the sole reason of this stress release, या मैं कह रहा हूं कि जो स्ट्रेस रिलीज हुई है, अगर वो इसी आपके इस प्रोसेस की वजह से ही हुई है, तो फिर तो बराबर ही आना चाहिए. कि अगर मैंने वहां से आइडेंटिफाई किया 100 किलो पास्कल एंड यू फाइंड द ओवरबर्डन स्ट्रेस हियर, इट कम्स टू बी नियरली 100, आई कैन से कि ये जो है ना, ये टेम्परेरी थी, अदरवाइज सैंपल जो ए है उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वही प्रेशर है पास्ट में, इससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगता कभी. ऐसे ही है. Yes, sir. ठीक है. तो अगर तो आप, Sir, if your sigma 0 prime is approximately equal to PC, मैं बस ज्यादा जानती है, इसने काफी टेस्ट किए हुए हैं, इसमें मुझे नहीं पता वो बोल रही है या बता नहीं रही मुझे. ठीक है जी. सिग्मा 0 ये ओवरबर्डन प्रेशर है, गामा एच के बराबर है. पीसी 100 किलो पास्कल आपने मालूम कर लिया कंसोलिडेशन टेस्ट से. सिग्मा जी 0 भी अप्रोक्सीमेटली 100 है. तो ये दोनों आप कह सकते हैं कि सिग्मा जी 0 प्राइम इज रफली इक्वल टू पीसी इन दिस केस. Yes, sir. So this soil is known as normally consolidated clay. Normally consolidated clay. Right, sir. What is normally consolidated clay? Means के A पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेस मौजूद है इस वक्त, which is equal to overburden pressure. कंसोलिडेशन टेस्ट भी हमें यही बता रहा है कि सैंपल में पास्ट में यही स्ट्रेस आ चुकी है, इससे ज्यादा कभी स्ट्रेस नहीं आई. तो दिस soil has experienced this overburden pressure, the maximum pressure in its past history, not more than that. So this is known Yes, as sir. normally consolidated clay. अगर लिखना चाहें तो लिख लें. Normally consolidated clay is the clay or the soil which has experienced the past pressure equal to the present overburden pressure. और मैं इसको इस तरह भी रिफ्रेज कर सकता हूं, the soil which has not been subjected to a pressure more than the present overburden pressure, के उसके ऊपर जो अभी तक प्रेशर लगा हुआ है ना, उसकी अपनी हिस्ट्री में, वो उस पॉइंट के ऊपर जिसको हम ए पॉइंट कह रहे हैं, जो इस वक्त ओवरबर्डन प्रेशर है, इससे प्रेशर ज्यादा कभी नहीं लगा उसके ऊपर. यही मैक्सिमम प्रेशर है विच द सॉइल हैज एक्सपीरियंस्ड इन इट्स पास्ट हिस्ट्री. जब से वो सॉइल बनी है, इससे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर कभी नहीं आया. ये किस किस्म की ग्राउंड हो सकती है कि जहां पे ओवरबर्डन प्रेशर जो इस वक्त है उससे ज्यादा प्रेशर कभी आया ही नहीं? ये नॉर्मल ग्राउंड हो Sir, सकती है? normally consolidated. नहीं, वो तो होगी Sir. ना. वैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ में कह रहा हूँ कि आपकी ये लाहौर की माल रोड हो सकती है जो 5 मीटर नीचे इस वक्त ओवरबर्डन प्रेशर होगा उसके नीचे, तो हम कहें कि इसकी पास हिस्ट्री में इतना ही प्रेशर इसके ऊपर लगा है, इससे ज्यादा कभी प्रेशर नहीं लगा, या उस पर ज्यादा प्रेशर लगा होगा?
सर मेरे ख्याल से सर अब ज्यादा होगा। सर मॉल रोड सर कम भी लगा होगा पहले। सर मॉल रोड के ऊपर तो सर ट्रैफिक चलती है, तो सर वहां पे तो This is the स्ट्रेसेस point जनरेट मैं ये होती कहना रहती चाह हैं। रहा हूं कि वहां कोई एक डंपर गुजरा है, कोई ट्राला गुजरा है, कोई बड़ा गुजरा है, उस वक्त तो उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आई थी ना। अब इस Yes, वक्त अगर मैं जाऊं, मार रोड बंद की हुई है, तो 5 मीटर नीचे जो इस वक्त प्रेजेंट उसके ऊपर प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेस है, वो क्या चीज है? वो सिर्फ ओवरबर्डन है जो इस वक्त मौजूद है। ये उसकी प्रेजेंट स्ट्रेस है। पास्ट की जो स्ट्रेस है वो मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली सॉइल विल टेल यू इन द कंसोलिडेशन टेस्ट। जब आप कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जितना मैक्सिमम प्रेशर उसने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है ना, वो जो ट्रांजिशन है उस पॉइंट से जाके शुरू होगी, वो ओवरबर्डन के बराबर नहीं शुरू होगी। अगर वो वहां पे 200 टन प्रेशर लग के एक ट्राला गुजर गया उसके ऊपर, उस 5 मीटर नीचे ग्राउंड पे इतना प्रेशर उस वक्त लगा है, तो दैट सॉइल विल रिमेंबर, एंड इफ यू ब्रिंग दैट सॉइल इनटू द कंसोलिडोमीटर, तो वो उस प्रेशर के ऊपर जाके चेंज होगा। तो उस सूरत में क्या मैं कह सकता हूं कि जो सिग्मा Z0 होगा, दैट विल बी फार लेस देन प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, क्योंकि वहां से प्री कंसोलिडेशन प्रेशर की अब ज्यादा वैल्यू आएगी अगर सॉइल पास्ट में किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी प्रेस हो चुकी है, जो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां हमने कुछ चौकीदार तो नहीं बिठाया हुआ, ठीक है ना जी। लेकिन सॉइल इन द कंसोलिडेशन टेस्ट विल इंडिकेट दैट दिस मच प्रेशर हैव बीन अप्लाइड टू मीन सॉइल। यस सर। ठीक है, तो अब दूसरी इक्वेशन जो मैं तो बैठ के बता रहा हूं कि वो ये बनेगी, सिग्मा Z0 जो प्रेजेंट ओवरबर्डन स्ट्रेस है, इट इज लेसर देन PC। एक ये केस बनेगा। इस केस को मैं क्या कहूं फिर? ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, ओवर कंसोलिडेटेड OCC। OCC क्या है? इट इज द क्ले और इट इज द सॉइल which had been subjected to a pressure more than the present overburden stress। कि जो इस वक्त उसके ऊपर ओवरबर्डन स्ट्रेस मौजूद है किसी भी डेप्थ के ऊपर, उससे ज्यादा प्रेशर पास्ट में उसके ऊपर लग चुका है। अगर तो दैट सॉइल इज नोन एज ओवर कंसोलिडेटेड, OCC। और अगर मुझे ये पता करना हो कि वो प्रेजेंट ओवरबर्डन स्ट्रेस जो प्रेशर है ना, वो हमारा बेंचमार्क है, वो हम वो देख रहे हैं इस वक्त। आप एक साइट है, वहां कुछ भी नहीं है, आपने बोर किया, 10 मीटर नीचे आपका सैंपल लिया आपने, आप देख रहे हैं कि सैंपल के ऊपर 10 मीटर स्ट्रेस लग रही है इस वक्त। इसको मैं कह रहा हूं प्रेजेंट ओवरबर्डन स्ट्रेस। उस साइट के ऊपर पास्ट में कितनी स्ट्रेस लग चुकी है, वो जब मैं टेस्ट लेबोरेटरी में लेके आया तो मुझे पता चला वहां 500 किलो पास्कल रिकम्प्रेशन की कर्व के प्रेशर आ रहा है, और प्री कंसोलिडेशन प्रेशर इज से 500, और नॉर्मल जो इस वक्त प्रेजेंट ओवरबर्डन स्ट्रेस है दैट इज जस्ट 100 किलो पास्कल से, तो 5 टाइम्स ज्यादा है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर। ठीक है, तो वहां से हम एक पैरामीटर निकाल लेते हैं विच इज नोन एज OCR। व्हाट इज OCR? सर ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होती है ये, मतलब कि प्रेशर में जो पास्ट और प्रेजेंट का जो प्रेशर है ना, उसकी रेशियो होती है। नहीं, आप मेरे पास दो प्रेशर मैंने आपको लिखा दिए, एक मैंने कह दिया प्री कंसोलिडेशन प्रेशर और एक है सिग्मा Z0। इसकी टर्म में बताएं OCR क्या बराबर, OCR विल बी इक्वल टू व्हाट? ऊपर कौन सा प्रेशर होगा और नीचे कौन सा प्रेशर होगा? ऊपर प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, PC over sigma Z0। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, जिसको मैं सिग्मा Z0 ये भी लिख रहा है, तो उनकी जो रेशियो है दैट विल बी द OCR। लेट्स से अगर PC 500 है और सिग्मा Z0 100 है, तो इस केस में ये 5 हो गया। तो हायर द OCR, हायर विल बी द डिग्री ऑफ ओवर कंसोलिडेशन। ये हमें बता रहा है कि पास्ट में इस साइड के ऊपर हाउ मेनी टाइम प्रेशर हैज बीन अप्लाइड एज कंपेयर टू प्रेजेंट ओवरबर्डन स्ट्रेस। जो इस वक्त आपने वहां से सैंपल लिया है, उसकी डेप्थ आपको पता है, उसका यूनिट वेट आपको पता है, आप मालूम कर सकते हैं कि प्रेजेंटली इस डेप्थ के ऊपर कितना प्रेशर है।
कंसोलिडेशन टेस्ट से हम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर निकाल लेंगे, वो हमें बताएगा कि पास्ट में तो प्रेजेंटली तो 100 है, लेकिन पास्ट में 500 है, पास्ट में 1000 है, पास्ट में 2000 किलो पास्कल प्रेशर लग चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ओसी आ रहा है। उसकी गुड एग्जांपल अगर मैं दे दूं, आपकी जिंदगी में ये वाकया हुआ है अमेरिका में, ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हुआ है वाकया, कितने स्टोरी बिल्डिंग थी वहां पर, मे बी लाइक 100, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 50, 60, 100 स्टोरी बिल्डिंग होगी ना? यस सर। जी सर ये आगे पीछे थी, पता नहीं। चले ठीक हो गया, मतलब 110 स्टोरी 110 स्टोरी थी इस वक्त वहां पे। अगर आप अमेरिका जाएंगे या उस जगह पे जाने की इजाजत दी, तो वहां आपको क्या नजर आता है इस वक्त? इस वक्त वहां पे पार्क है, ग्राउंड है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है ना? जी सर। तो आज हम मैं नहीं है, 2000 साल के बाद जो बंदा इधर पढ़ रहा होगा बैठ के, तो वो वहां पे ग्राउंड पड़ी हुई है और उनको ख्याल आ गया कि आप जहाँ पे एक बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पे सॉइल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू कर दी है और वहां से 100 मीटर पे एक सैंपल निकाला है, कंसोलिडेशन टेस्ट में लगा दी है। तो वहां पे 100 मीटर इंटू 9 जो भी 20 है यूनिट सॉइल का यूनिट वेट, तो अप्रोक्सीमेटली 200 किलो पास्कल प्रेशर होगा ना वहां पे ओवरबर्डन, 100 मीटर से मैं सैंपल लूँ। यस सर। आप उस सैंपल को अगर कंसोलिडेशन टेस्ट में लगा दें, तो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर वो बताएगा या सिर्फ वो उतना ही बताएगा जितना उस वक्त ओवरबर्डन है? नहीं सर, बताएगा। It had been much compressed due to the weight of this much heavy building, ठीक है। तो वो हमें OCR बताती है कि कितने टाइम जो है वो इस पे हायर प्रेशर लग चुका है। तो दिस इज बेनिफिशियल, जितनी OCR की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी। अब आपका रिकम्प्रेशन जोन आपको पता है कि उसका स्लोप कम है, तो अगर आपका लोड जो अब आप फ्यूचर में लोड लगाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास्ट प्रेशर से पहले ही खत्म हो जाए वो, जैसे मैं कह रहा हूँ वहां 100 स्टोरी बिल्डिंग थी, अब वहां पे किसी ने अपना एक बंगलो बनाना है, 2 स्टोरी 3 स्टोरी, तो क्या हमें कुछ सेटलमेंट के बारे में कंसर्न होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए? यस सर होना चाहिए। यस सर होना चाहिए। यस सर। होना चाहिए। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। उस ग्राउंड ने 100 स्टोरी नो बिल्डिंग सर, वो तो कॉम्पैक्ट होगा उसके मुताबिक, बिल्डिंग के मुताबिक। सर नहीं होना चाहिए मेरे भी ख्याल से। यार कम ऑन एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियर यही वो इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई आपके पास क्लाइंट आ जाता है ना कि जी मेरा प्लाजा था, तो सर मैंने वो प्लाजा गिरा दिया, बेगम साहबा कह रही कि आप वहाँ अपना घर बनाएंगे, 2 स्टोरी, तो इसकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो मुझे बताएं, तो यू विल बी वेरी रिलैक्स। आप करें, काम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, लेकिन आपको फिक्र की जरूरत कोई नहीं है। आप चाहे इन्वेस्टिगेशन उसको ऐसे किसी ने कह दिया बगैर सॉइल इन्वेस्टिगेशन के वो अपना 2 स्टोरी का घर बना ले, किसी को पूछने की भी शायद जरूरत नहीं है। वजह यह है कि उसी साइट के ऊपर अगर एक हैवी स्ट्रक्चर सक्सेसफुली वहां मौजूद थी, तो कंप्रेशन हो चुकी है। अब आपका प्रेशर एज कंपेयर टू द पास्ट प्रेशर इज वेरी स्मॉल, तो वेरी स्मॉल सेटलमेंट विल टेक प्लेस, ठीक है। तो उस रिकम्प्रेशन का मतलब ये है कि सॉइल पहले ही वहां कंप्रेस हो चुकी है, उसको रिमूव करके अगर आप दोबारा उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो वो सेटलमेंट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द पास्ट सेटलमेंट, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे आप उस पॉइंट को क्रॉस करते हैं, मसला तब शुरू होता है, वहां नॉर्मल कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। तो नॉर्मल साइड का मतलब ये है, जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था, कि इस तरह की साइट कहाँ होगी जैसे नॉर्मली कंसोलिडेटेड प्ले है। थ्योरेटिकली यहाँ जिस ग्राउंड के ऊपर आप चल फिर रहे हैं, ट्रैफिक मूव कर रही है, ये ग्राउंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड नहीं होगी। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड ग्राउंड अगर आप ये पढ़ेंगे ना, ये पेजेस पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो है ना वो यू कैन से द बॉटम ऑफ ए लेक, या ऐसी रिस्ट्रिक्टेड प्लेस जहां पे आपका कोई ट्रैफिक एक्सटर्नल लोड नहीं जा रहा, तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि वहां पे होगी। अदरवाइज फॉर तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड जो क्ले होती है ना, वो विर्जन क्लेज हैं जिसके ऊपर कभी वो बड़ी लूजली प्लेस्ड हैं। तो दैट इज द
अब मैं इस कंसेप्ट के साथ, तो हमारे पास जो पैरामीटर्स हमें सेटलमेंट मालूम करने के लिए चाहिए होंगे, आपको प्रेजेंट ओवरबर्डन स्ट्रेस चाहिए होगी, ठीक है जी, और प्री कंसोलिडेशन प्रेशर चाहिए होगा, और माय माउथ स्टार्ट वर्किंग, स्टॉप कर दिया यार, उससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आई एम जस्ट okay, sorry.